नाउ अभी हम लोग का स्टाफ में से एक बात आप लोग ये जानते हैं कि यहाँ पे सोसाइटी फाउंडेशन में हम लोग का जितना भी स्टाफ है सब यहाँ पे ही ट्रीटमेंट करके यहाँ पे ही स्टाफ बना है। और इसमें एक तपादिल भी है, क्योंकि तपादिल को लास्ट आज बर्थडे बॉय है, यू विल गेट द चांस ऑफ द लास्ट टाइम, नो, बिकॉज वी विल गिव एनफ टाइम टू हिम। तो यहाँ पे कोई भी स्टाफ आके उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकता है, प्लीज शर्माइए मत, ये शर्माने का बात नहीं, प्लीज। Thank you, sir. Good afternoon, everyone. Zutip, sir. First of all, I'd like to say hearty congrats to Topali for completing his 1 year. और तोपादिल के बारे में क्या बोलूँ, क्योंकि मेरा 1 महीना पहले वो आया था, फिर आने के बाद मैं भी नया था, अराउंड लाइक 25-30 डेज हुआ था मेरा भी। उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ फर्स्ट डिशवॉश को लेके। उसके बाद मतलब पहले तो वो लड़का ऑनेस्टली स्पीकिंग थोड़ा दूसरा टाइप का था। तो एक ब्रदर जैसे बोला कि मतलब थोड़ा बोलता है ना, थोड़ा क्या बोलता है, टेम्पर्ड, मतलब सब कुछ घर में कुछ नहीं करता है, बिंदास मिलता है, ऐसा मतलब ऐसा टाइप का। लेकिन अभी जब उसको धीरे धीरे चलते गया, दिन चलते गया, वो थोड़ा चेंज होने लगा है। और अभी तो फिलहाल हम लोग के साथ स्टाफ इज वर्किंग विद अस। सो इन मेनी सिचुएशन ना हम लोग उसको थोड़ा दूसरे टाइप से, मतलब थोड़ा रूडली बोलने से भी वो उसको मन में नहीं रखता है, अचानक वो हंसता है या फील नहीं करता है, मतलब मेरे को ऐसा क्यों बोला, वो मतलब ये नहीं मानता, इसलिए अच्छा लगता है। और कुछ भी काम मतलब वो नहीं जानता है, लेकिन अगर हम लोग दिखाता है तो मतलब ठीक है, कोशिश करता है, कोई बार अच्छा लगता है, कोशिश करता है। वो डायरेक्टली ये नहीं बोलते कि मैं नहीं सकेगा या क्या, या कुछ भी रीजन देता है, नहीं देता है सॉरी, लेकिन कोशिश करता है, वही अच्छा लगता है। एंड लास्टली यही बोलना चाहेगा तोपादिल को, जे अभी बिल्डिंग शुरू हुआ है लाइफ का, सो कॉल्ड लाइफ, हम लोग का लाइफ एक बिल्डिंग जैसा है, जैसे फाउंडेशन बना है, उसका बिल्डिंग बना है। सो ये तोपादिल के लिए हम लोग बोल सकते हैं, और मैं बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट फ्लोर है, and there is much to go. So Topadill, keep coming back, together we can do it, or may God bless him. Thank you. Hi friends, Paul and Eddie. First of all, Topadill 1 year complete করার জন্য congratulations. Topadill তো মই day 1 পৰা পাইছো, পেশেন্ট হৈ day 1 পৰা পাইছো, এতিয়া মই স্টাফ আছো। কিন্তু এতিয়া যেতিয়া day 1 পৰা তাৰ বহুতখিনি মানে এটা মানে একো কাম চামটো ঘৰত কৰা আছে, এনেকুৱা আমি কোনো কৰা নাছিলো বা ইও কৰা নাই। তো এইবিলাক লৈ কিনে মানে বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম আছিল, বা ই নকৰো এনেকুৱা জিদ কৰে কিছুমান বস্তুত। কিন্তু তথাপি তাক আমি বুজাইছো, বহুত বুজাই মেলি এনেকুৱাকে চবকে চাই বহুত কথা শিকিছে, আৰু এতিয়াও মানে বহুত কথা শিকি আছে, আৰু ভাল লাগে যে ক'লে কিবা এটা কথা শুনে। কিন্তু আগতে যেনেকুৱা জিদ আছিল, এতিয়া ইমান জিদ এনেকুৱা নাই, কিন্তু ক'লে এতিয়া বহুতখিনি বুজি পোৱা হৈছে আৰু শুনে। তো তাৰ কাৰণে ল'ৰাটোক কিন্তু একচুৱেলি বহুত আৰু ভাল হয় মনৰ পৰা, মানে যেনেকুৱা কওঁ সেনেকুৱা মতে শুনে বা ভাল লাগে, আৰু চবৰ লগত বিহেভিয়াৰটো কিন্তু এইটোও বহুতখিনি ভাল লাগে। দাদা বুলি ৰেচপেক্ট কৰে, বা মানে যেতিয়াও মাতে দাদা বুলি মাতে, ভাল লাগে এইখিনি। ইমানখিনি ইম্প্ৰুভ হৈছে day 1 পৰা চাইছো ন, আৰু নিজকো মোৰো ভাল লাগে, আৰু যেন ইম্প্ৰুভ কৰক এইটোৱে মই আশা কৰিম। আৰু কি ক'ম, এইখিনিয়ে। থেংক ইউ। और कोई?
Manjari. প্ৰথমতে মই বাহিৰৰ এবছৰ কমপ্লিট কৰা কংগ্ৰেচুলেশ্যন কৰিছোঁ। বাহিৰক মই পাঁচদিনৰ পৰাই পাইছোঁ ইয়ালৈ অহা, আৰু প্ৰথম আহি মানে মোৰ বেছি ক্ল'জ ইয়াৰ লগতে আছিল। কাৰণ ইও বহুত অকলে থাকে আৰু ময়ো বহুত অকলশৰীয়াকৈ আছিলোঁ। তো বহুত কথা পাতিছিলোঁ আমি এটাইতো, আৰু মানে কিছুমান বস্তু মানে মই কাৰণ মোৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট ট্ৰিটমেণ্ট হয়, আৰু মই বহুত কথা নাজানিছিলোঁ, মানে বুজা নাছিলোঁ। ইও মানে সেইবোৰ বহুত হেল্প কৰিছিলে মোক, আৰু কেনেকৈ থাকিব লাগে ইয়াত, কিদৰে চলিব লাগে। তো ভাবোঁ যে ই মানে আগৰ নিজৰ লাইফটোত ভাল হয় আৰু এনেকৈ চলি গৈ থাকক। Thank you. Now friends, now I want to call our project director श्रीमान जी। प्लीज सर आप आइए, हम लोग का साथ कुछ शेयरिंग कीजिए, टॉप अमेरिका बारे में कुछ शेयरिंग कीजिए, हम लोग आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, प्लीज। Hello everybody, I'm Simanta Nerik. Hi, Simanta. By the grace of God, I'm here today. And it's a great day actually for all of us recovering people, to celebrate someone else's birthday. Well, because Tapaji, the person he was when he came here, and the person he is today, there's a vast sea of difference. Yeah. At first he was, that guy with an attitude. Obnoxious, you can say. Eccentric in some ways. And very stubborn. This is all due to his substance abuse. But as slowly he came into recovery, these things started to melt away. These attitudes of his started to melt away. These illogical attitudes, the illogical egos, they started to vanish. And today, he is more logical, more responsible, and he's become that person who wants to work, to keep himself busy. He wants to learn. That's a big thing. Because when percentage of us, we are voice of Danu. I know everything. Yeah? Others know nothing. We have that attitude. But when we come into recovery, if you start building an attitude that yes, I need to learn. Yes, I need to learn a lot more. Then you know that you are really going ahead. Then you know, yes, this is the right way. Because then you start logically thinking, becoming more responsible,
he is not bad also. He is just sickness of his substance. और उनका sickness का problem है अपना substance को लेके. तो rehabilitation जो part होता है, rehabilitation means what? Not only to stay away from alcohol or drug. It is rehabilitate your life. That I have learned from our project director. Rehabilitate your life. Discipline your life. जो अपना लाइफ को डिसिप्लिन बनाता है, ना उनको ड्रग के बारे में सोचना पड़ता है, ना अल्कोहल के बारे में उसको याद आता है. नहीं आता है, नहीं आता है. तो यही जो रिहेबिलिटेशन पार्ट है, इसी को सिखाया जाता है. अगर यहाँ पे बहुत मेरे से एजेड आदमी है, दादा लोग हैं बहुत, तो व्हाट इज रिहेबिलिटेशन? मेरा रिहेबिलिटेशन का मतलब ये होता है कि हाउ आई कैन गिव द रिस्पेक्ट टू अदर्स. आई यूज्ड टू कॉल देम दादा. दादा आप कैसा है? ठीक है. मेरा सेशन कैसा हुआ? अच्छा हुआ. दैट इज कॉल्ड रेस्पेक्ट. इफ यू गिव रेस्पेक्ट टू अदर्स, देन अदर विल गिव यू टू रेस्पेक्ट टू यू. डिसिप्लिन लाइफ एक दूसरा चीज होता है, और हम लोग का चीज है कि हम लोग को दूसरे को रेस्पेक्ट देना होता है. भगवत गीता का जब यहाँ पे क्लास लेता हूं, तो मैंने एक बार 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 बोलता हूं कि किसी का मजाक मत उड़ाइए. मैंने सीखा किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. जब टपाजी पहला आया था, तभी उनका मैं मजाक नहीं हुआ, किसी का नहीं उड़ाया आज तक. किसी को नहीं बोला कि तुम सोबर नहीं बन सकता, बिकॉज आई एम नॉट गॉड. एवरीवन यहाँ पे जितना भी 85-90 आदमी है, सभी सोबर रह पाएगा. Then always remember in your mind that मैं भी सोबर रह पाऊंगा. क्यों रह नहीं पाए? अगर आप एक डिसिप्लिन लाइफ एडॉप्ट करें तो डिसिप्लिन लाइफ. देखिए जितना भी आदमी बाहर जाता है, फिर वो प्रॉब्लम क्या होता है? उनका प्रॉब्लम होता है, और डिसिप्लिन लाइफ जो रिहैब में सिखाया जाता है वो भूल जाते हैं, बाहर में जाते हैं, बिकॉज ऑफ लेजीनेस, बिकॉज ऑफ इंसेंटी थॉट्स. सो वो डिसिप्लिन लाइफ जब भूल जाता है, धीरे 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 उनको नेगेटिव थिंग अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव थिंग जब अट्रैक्ट करता है तो एडिक्शन में चला जाता है. तो लास्ट आज 10-12 दिन पहले तुम्हारी हम लोग का ऑफिस में बोल रहा, बाबीदा सिद्धार्थ हमको और कुछ 1 साल एटलीस्ट आप लोग का साथ बिताना है. आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि तुम्हारे कल जाने वाला था. तो सर और हमने बात किया, उनका घर से वो फोन किया. अभी रिकवरी क्या होता है? जब वो अपना पिताजी से बात किया कि हमको मिनिमम 1 साल तो रहना है, क्योंकि मुझे और अपना रिकवरी और स्ट्रॉन्ग बनाना है. मैंने अपना माइंड में सोचा दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रिकवरी. यही तो रिकवरी होता है. हम लोग का साथ 1 साल काम करेगा, वो बहुत कुछ सीखेगा. हाउ वी आर गोइंग टू हेल्प अदर्स. हम लोग दूसरे को कैसे हेल्प करता है. तो यही चीज होता है कि हम लोग का जो जल्दीपन रहता है, हम लोग एडिक्ट लोग कैसा होता है, हम लोग इजी और सॉफ्टवेयर वे ढूंढता है एडिक्शन से दूर रहने के लिए. इजी एंड सॉफ्टवेयर वे, इजी वे जिससे हम एडिक्शन से दूर रह नहीं पाता है. इजी और सॉफ्टवेयर वे नहीं है एडिक्शन से दूर रहने के लिए. इसमें अपना जो कैरेक्टर डिफेक्ट है उसका ऊपर में काम करना पड़ेगा. आज भी मैं अपना कैरेक्टर डिफेक्ट का ऊपर में काम करता हूं. यही चीज टॉमाधीन अपना जिंदगी में कर रहा है. उनका कोई प्रॉब्लम नहीं. उनका बिजनेस है, उनका फैमिली बिजनेस है, 3-4 पेट्रोल डिपो है, बहुत कुछ है, लेकिन खुद विलिंगली यहाँ पे हम लोग का साथ रहना चाहता है. देन आवर डायरेक्टर टोल्ड कि तुमको ये घर में बताना होगा. यू हैव टू आस्क योर फैमिली मेंबर, क्योंकि खाली हम लोग का हिसाब से हम लोग का फैमिली काम फर्स्ट. क्योंकि हम लोग को, मैं बार बार यहाँ पे बोलता हूँ, हम लोग का जो फ्रेंड है बाहर का आदमी कोई फ्रेंड नहीं. हम लोग का फर्स्ट फ्रेंड है हम लोग का फैमिली. मेरा माँ, मेरा पिताजी, मेरा भाई बहन,
ये आप लोग का फर्स्ट फ्रेंड। तो तपादी ने बात किया अपना घर में, और दे आर वेरी हैप्पी। उनका घर का आदमी, हैप्पीनेस तो ऐसा ही होता है, जो वो अपने आप के लिए जीना चाहता है, अपने आप के लिए। अगर मैं अपने आप को प्यार करूंगा तो मैं हर एक आदमी को प्यार कर सकता हूं, लेकिन पहले अपने आप से प्यार करना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। यहां पे हम लोग का बीच में अरुणाचल से लेके, मेघालय से लेके, मिजोरम से लेके सब जगह से है। वी आर स्टेइंग हियर एज ए फेलो ब्रदर्स। ये जो सोमराइजी फाउंडेशन क्या सिखाता है कि ब्रदरहुड। अभी एक भाई बोल रहा था मोस्ट प्रोबेबली के टोपाधीर वहां पे रहता, मैं चला जाऊंगा, टोपाधीर चला जाएगा। फिर बोला नहीं, आज वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। दोस्ती के लिए कहां से आया, आप कौन सा कम्युनिटी का है, कौन सा रिलीजन का है, वो नहीं होता है। दोस्ती होता है जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करेगा। हर एक को आप दोस्त, ऐसा दोस्त नजरिए से आपको दिखाई पड़ता है। तो आज हम लोग का यहां पे जितना भी स्टाफ है, 8, 9, 10 जितना भी स्टाफ है, ऑल आर द पीपल हु यहां पे ट्रीटमेंट किया। उसका बाद आज वो लोग अपना पैर पे खड़ा होके 2 पैसा इनकम करके यहां पे काम कर रहा है। और एटलीस्ट मैं कल रात को जब सोया, एटलीस्ट हम लोग का स्टाफ जितना भी है 8-10 जो रिकवरी में है, एटलीस्ट उनका घर क्या है, हैप्पीली है, बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम द सब्सटेंस। और एक बात बताना चाहता हूं, सर हमको बोला वो अनाउंस करने के लिए, 2 जो भाई है, 2 भाई आप लोग का बीच में से हम लोग डिसाइड किया है, उन लोग हम लोग का साथ काम करेगा। आप लोग को आज वो अनाउंसमेंट मैं कर देता हूं। यहाँ पे एक तो है एडवर्ड, और हेमांतर। आज से हम लोग का साथ जुड़ेगा, मीन्स हम लोग का साथ, आप लोग का साथ ही रहेगा, हम लोग कैसा रहता है, लेकिन उन लोग का भी विलिंगनेस है, उन लोग का भी सोच, तो वही सोच आप लोग को लाना है। देखिए हम लोग एक रिकवरी एडिक्ट है, हम लोग को क्यों भगवान ने बचाया, हम लोग ने गॉड ने क्यों बचाया, हम लोग को अल्लाह ने क्यों बचाया, बिकॉज वी हैव टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी।
रिकवरी बढ़ाए। अगर वो रिकवरी में रहेगा, उनका पिताजी जितना अभी इनकम करता है उससे 10 गुना ज्यादा कर पाएगा। इतना तो समझ में आया। आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि एटलीस्ट मेरा सेशन में यही सिखाया जाता है कैसे आप जो 3 द्वार होता है ना, 3 द्वार होता है नरक का, वो एटलीस्ट तपादी ने सीखा। नरक का 3 द्वार होता है, एंगर, ग्रीड एंड लस्ट। तो ये एंगर, ग्रीड और लस्ट से तपादी धीरे धीरे काम करने लगा। आई एम हैप्पी, वी आर हैप्पी, बहुत हैप्पी हूं। और आज इसीलिए तपादी को अपना दिल से, एकदम दिल से उनको बधाई देता हूं, बधाई देता हूं। और हर एक को ट्राई करना चाहिए कि आप एक स्टेप करके आगे बढ़ते रहिए। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ वी हैव गॉट द करेज। करेज जो वर्ड होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है। सो आज बहुत अच्छा दिन है और इसीलिए मैं फिर से एक बार तपादीर को 1 ईयर सोबर लाइफ के लिए उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। तो अभी नाउ I want to call Tapadir. Please, Tapadir, come. Hi friends, myself Tapadir recovering addict. Hi, Tapadir. मैं इधर में आज से 1 साल पहले आया तो रिहैब का इंफॉर्मेशन तो मुझे पहले से ही है। रिहैब क्या होता है, रिहैब क्या चीज़ में हम लोगों का मदद करता है, हम लोगों को रिहैब का ज़रूरत है, रिहैब को हम लोगों का ज़रूरत नहीं है। तो पहले भी मैंने ट्रीटमेंट लिया है 6-7 बार। फर्स्ट टाइम हिमांश में गया था फैमिली के साथ, तब मतलब बिहेवियर का प्रॉब्लम था मेरा, मैं पता नहीं था, मेरा गेमिंग एडिक्शन था। तो साइबर कैफे में जाके सारा दिन गेम खेलता रहता था। उसके बाद हिमांश से जब आया तब एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम के पहले मैं पढ़ता नहीं था, फिर से गेम खेलने जाता था। और जब मैं दोबारा आके गेम खेलने गया तो मतलब पहले से ज़्यादा टाइम खेलने लगा। सपोज पहले अगर 1 घंटा खेलता था, इस बार 3-4 घंटा खेलता था। ऐसे मतलब जो मेरा डिजीज का सिंबल है प्रोग्रेसिव फेटल, वही मतलब मैंने देखा। उसके बाद और एक बार फर्स्ट टाइम रिहैब में गया दिल्ली में, तब मतलब मैं ओकेशनली मेरा सब्सटेंस लेता था कभी कभार। तो दिल्ली में जब गया उधर मैं 3 महीना था, मेरा बायोलॉजिकल बर्थडे में सेलिब्रेट करके आया। तो जब उधर से आया तो मतलब मेरे को रिहैब के बारे में कुछ पता नहीं था। उधर में जाके सब इंफॉर्मेशन मुझे मिला सब्सटेंस के बारे में। तो क्यूरियोसिटी ब्रेन जो मेरा है उसने क्या किया, वो मतलब जो पहले मेरा सब्सटेंस था उससे अलग अलग सब्सटेंस ट्राई करवाया। ऐसे करते करते मैं रिहैब जाता रहा, निकलता रहा, रिलैप्स करता रहा, अलग अलग सब्सटेंस ट्राई करता रहा, एक के साथ और एक के साथ और एक। ऐसे करते करते मेरा हालत मतलब एक ऐसा हो गया था कि घर आता हूँ, 1-1.5 महीना रहता हूँ, सब्सटेंस अब्यूज करता हूँ, फिर से रिहैब जाता हूँ, 3-4 महीना रहता हूँ रिहैब में, फिर से अपना बॉडी को सब्सटेंस अब्यूज करने का लायक बना देता हूँ। तो इधर में मैं जब आया, इधर में आने के बाद मुझे मतलब इधर में बिना बताए लेके आए थे मेरा गार्जियन नहीं, मेरा अंकल। और मैं गेट के बाहर आके रास्ते पे मेरा माँ के साथ मैं फ़ोन में बात कर रहा था कि एक बार बता के तो ला सकते थे, मगर बिना बताए क्यों लाए।
करते करते मैंने बोला ठीक है एक बार पापा को फ़ोन दो, बाप के साथ थोड़ा बात कर लेते फोन। तो करते करते ही मेरा मतलब इधर में आने का गेट खुल गया और मैं इधर अंदर आ गया। तो 5 दिन से आज का दिन में मैं बहुत सारा मेरा इम्प्रूवमेंट मैं देख रहा हूँ खुद में। पहले मैं बहुत नर्वस होता था, कॉन्फिडेंस का कमी था। उसके बाद बहुत सारा मुझमें प्रॉब्लम था। जिसको हम लोग बहुत सारा मुझमें प्रॉब्लम था। इसके बाद धीरे धीरे मैं मतलब वो सब चीज़ों में काम करने लगा। जैसे जैसे हम लोग को क्लास में जो सिखाया जाता है उस तरीके से मैं मतलब धीरे धीरे उस पर काम करने लगा कि कैसे मतलब हम लोगों का एडिक्शन को कंट्रोल करना है। हाँ, क्योंकि उसका कोई क्योरमेंट नहीं है मेडिसिन से, उसको सिर्फ कंट्रोल ही किया जा सकता है। तो अरेस्ट करके रखा, मतलब अरेस्ट करना उसको सीखा। उसके बाद धीरे धीरे और इधर में जो सालों क्लास लेता है धनी सर का, पहले वो अभी क्लास नहीं लेते। उसके बाद ज्ञानेश्वर सर, प्रांजल सर, बापीदा, तो उन लोगों का क्लास मेरे को बहुत इंफॉर्मेटिव लगा। एक एक चीज़ नया नया जानने के लिए मिला कि हम लोग एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। वी आर नॉट sick people, we are not bad people, we are not mad people, we are just sick people। तो मतलब धीरे धीरे जैसे मेरे को समझ में आने लगा मेरा जो प्रॉब्लम, उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मतलब इस पे मैं काम करूंगा और इसको मतलब